Assalamu alaikum दोस्तों. My name is Sayyid Zishan Haider and today will be my first vlog. As first I wanted to tell you about myself. My name is Sayyid Zishan Haider. I am from Pakistan and I am here in Dubai from last 4 years. By profession I am an accountant. I have around 12-year experience. 7 years in Pakistan. I was in Askari as an assistant manager in internal audit, and in 2015 I came back here in Dubai, and I was working as a chief accountant in a company here for almost 4.5 years. So friends, this was my introduction. Now from April onward I resigned from my previous company, and now I'm working in a new company as a business development manager. Currently it's a new company, new setup, not a big setup, but it's good, have potential to be grown. Nowadays, due to this coronavirus pandemic, market is very bad, situation is very bad. The purchasing power of the companies are got down. There is no customer in the market. Wherever you will go, there is a lot of competition with the less prices, and from last 1.5 month I face really big troubles in terms of getting the new clients. As today is today from morning 9 o'clock till now I was on in the market and searching for the clients, searching for the things, nothing happening. This coronavirus pandemic hit the economy very bad. Hopes in next few weeks it will be get much better. It's a time to go home, and you can see there is too much traffic, and now from last 1.5 minute I am here and I am stuck with this traffic, very very bad. This is the Shandega tunnel, and now you can see the timing 6:25. In 20 minutes I supposedly 200 meters or 300 meters I just travel, so you can see it. This is Shandega road. जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि बहुत मुश्किल होता है इधर सर्वाइव करना, घर वालों से दूर। कोशिश तो की जा सकती है, हर इंसान अपने एक मुस्तकबिल के लिए आता है, लेकिन मेरी अपने सब भाइयों से गुजारिश है कि आप अपने मुल्क में कोशिश करें। देखें, हम लोग अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं अपने अपनों की खुशी की खातिर, लेकिन हमारे मुल्क को भी हमारी ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ को कंट्रीब्यूट करें। देखें, एज ए पाकिस्तानी इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड बी गिविंग समथिंग बैक टू माई कंट्री, दैट व्हाट they give me in return. My country gave me a proudness that I am a citizen of the first Islamic atomic power. I am a proud Pakistani. I am a proud Muslim. We the Pakistanis, we are a proud nation. But we have to take some steps
कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है, हमें अपनी ग्रोथ को अपने माशरे को बेहतर करना है। एज इन सिविलाइजेशन वी हैव टू बी शोन आवरसेल्फ दैट वी आर matured enough and or we are well organized or well equipped as per the modern days and modern technology, so we can cope up with the world. So I hope कि हम ये सब चीज़ें कर लेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अपने मुल्क में अमन और सुकून लेकर आएंगे। और मुझे इमरान ख़ान की क़यादत के ऊपर पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इमरान ख़ान जो है वो हमारे मुल्क के करेंगे। नज़ारे देखें जी, ये दुबई के नज़ारे हैं। मैं इस वक्त अभी घर जा रहा हूँ, ये शिंदे टनल से मैं निकला हूँ और अभी मैं इस वक्त सतवा की तरफ जा रहा हूँ। आई होप दैट कि मैं पार्किंग मुझे मिल जाए। ये आप देख रहे हैं, ये क्वीन ऑफ दुबई, उसकी ये उनकी शिप यॉट है। It's a beautiful place. It's a very nice country. Actually, you know what? If your salary is very good, and you can enjoy this country very much. It's a very beautiful place. Very beautiful. You can enjoy. You can live your life if you have a stable job and a good salary, and that is the only thing you required here to survive in the UAE. If you don't have a good job and good salary, it will be very difficult, especially like Pakistanis like us, that we have to send the money at our homes because our families, they are waiting for us to be sending the money. So आप देख सकते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं, हम सब पाकिस्तानी, कि जितने ज़्यादा पैसे पाकिस्तान भिजवा सकें भिजवाएं। हम छोटी जगहों पे रहते हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन ये दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये देखें आप, रिस्ट्रिक्शंस के ईज़ किया है गवर्नमेंट ने, तो आवाम जो है वो वॉक कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। वो देखें आपको 2 आदमी जॉगिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सेम आई वाज लाइक, यू कैन से, आई वाज थिंकिंग दैट आई विल स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज, बट ड्यू टू दिस माई न्यू वर्क इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बी स्टार्ट। सो अभी आपको मैंने जाते हुए की रोड दिखाई, तो कितना ट्रैफिक था डेरा वाली साइड पे जाते हुए सिंधिका वाली साइड से, और अभी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक इस साइड पे बिल्कुल नहीं है। एंड आई एम प्रेइंग दैट आई कैन गेट द ये जी ये रास्ता जाता है पोर्ट राशिद की तरफ, मैरीटाइम। इसे पोर्ट राशिद की तरफ जाता है ये रास्ता। इस साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और आपको फिर भी फिनिश सून इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। Now you can see the time is 6:53 in evening and जिंदा हूँ मैं जी लेने दो बड़ी बरसात में। अब आ जाते हैं नई कंपनी में। मेरे एक दोस्त है सुफियान, मैं उसके साथ तकरीबन उसको 4 से 5 साल से जानता हूँ। जब मैं दुबई में आया था तो जिस रूम में मैंने रहना शुरू किया था तो सुफियान भी मेरे साथ वहीं रहता था, तो वहीं से मेरी उनकी दोस्ती हुई। तो मेरी उससे बात हुई तो वो कह रहा था कि यार मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है, तो मैं उसके पास एज ए अभी ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा हूँ। अफसोस होता है कि यार एक आप अकाउंटेंट थे, एक अच्छी वेल educated and highly like a good salary and good everything is good, but now due to the bad situation that you cannot survive with until your case will be over. So yeah, thanks to him कि he offered me job, so मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। जैसे मिनिमम वेजेस मेरा काम है कि सामान डिलीवर करना और
साथ उसने मुझे कहा कि यार ये तो है, लेकिन तुम एज ए बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे अगर तुम कंपनी को परमानेंटली ज्वाइन करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, तुम आओ, क्लाइंट्स लाओ और काम करो। तो पहले तो मुझे ये है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान से पैसे मंगवा कर गुजारा करना तो आपको पता ही है इससे कितना मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट just accept this offer for a time being, until I will be in a good position to be having to get something in return। तो मैंने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली और तकरीबन अभी 1 माह मेरा हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। तो आज से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी जो डेली एक्टिविटी है वो मैं शेयर करूँगा और मैं बताना चाहता हूँ कि दुबई की लाइफ और बाहर की लाइफ, जो मेरे दोस्त, मेरे भाई पाकिस्तानी ये समझते हैं कि बाहर जाकर हर चीज़ आसान हो जाती है, ऐसी नहीं है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आप अपने घर वालों से दूर, अपने बीवी, अपने बच्चों से, अपनी माँ बाप से, अपने तमाम चाहने वालों से आप दूर होते हो और इन दी रिटर्न आपको सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियाँ ही मिलती हैं। फाइनेंशियल मनी डज़न्ट मैटर। देखें, पैसा जो है ना वो हर चीज़ नहीं ख़रीद सकता, हर खुशी नहीं ख़रीद सकता। तो मेरी ये सब पाकिस्तानियों से, सब जो रहते हैं, जो भी बाहर दूसरे ममालिक में जाकर रोज़गार कमा रहे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि अपनी खुशियों, पैसे की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी ना दें। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की, जिसको मैं रियलाइज़ करता हूँ कि हाँ, ये मैंने गलती की है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बेसिकली। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, I was working in safety line from 2015, and so from the past 1 year the company financial position was not good, so they have a pending salaries for around 6-7 months. And on the 1st March, as the pandemic of this coronavirus started, what they did, the owner of the company, he make the excuse of this corona that his company financial position is down, and he start reducing the salary of the people, and he sending the half of the employees at home and unpaid leave. As the last year in October, the labor contract has been finished, so I give him the non-renewal notice already, but he is not cancelling me. He is telling me that, okay Zishan, currently I cannot cancel you, I don't have money to pay your final dues and blah blah blah. You know the story, what they are doing it. And I say, okay sir, take your time. And then the time passes, and December came, and then in January he talked with me that okay, he is going to renew me until this situation will be until his financial situation of the company will get better, and he will settle my all dues. I agreed with him because I was watching it, the company situation is not good. So I say, okay, no problem, let's wait. But eventually this in March the corona pandemic started, and he started making the excuses. वो कहना शुरू हो गया कि भाई मैं नहीं कर सकता कैंसिल, मैं सैलरीज नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो मैंने डिसाइड किया एट द लास्ट विद द हेल्प ऑफ माय फैमिली, एंड मैंने स्पेशली अपनी अम्मी अब्बू से और अपनी वाइफ से डिस्कस किया और ये डिसाइड किया कि ज़ीशान, इट्स बेटर नाउ कि हम कोर्ट केस कर देते हैं। तो मैंने 1 अप्रैल को तवफ़ुक़ सेंटर में अपना लेबर केस जो है वो फाइनलाइज़ कर दिया। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मैंने लेबर केस डाला और फिर कोर्ट्स बंद हो गई और बड़ा प्रॉब्लम हो गई। और फिर ये थे कि तवफ़ुक़ सेंटर की तरफ से तो मेरा कोर्ट जो है वो तवफ़ुक़ सेंटर ने तो लेबर कोर्ट में मेरा कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया। अब मुझे जाना है उधर, जाके मैंने देखना है कि उसका मेरे केस का क्या बना। मैंने फ़ीस वगैरह भी पे की थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही क्या प्रोसीजर है। खैर, अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है वो जाऊँगा और जाके देखूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं चीफ़ अकाउंटेंट था और
कोरोना की वजह से नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आप ट्रैफिक देख सकते हैं। मुझे लास्ट ट्रैक में जाना है और वहाँ से यू टर्न लेना है मैंने शिंदे का टनल की तरफ। इस तक आप ये देख सकते हैं अबू हिल और मंजर की तरफ जा रहा है, और ये जो है राइट साइड पे रिगा है और लेफ़्ट साइड पे कॉर्निश है, डेरा। तो लेकिन मुझे जाना है एक्सट्रीम राइट पे, ये ताकि मैं यू टर्न ले सकूँ। यहाँ आगे राउंड अबाउट आ रहा है और राउंड अबाउट से मुझे यू टर्न लेना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यार देखिए मेरी बात, मैं असल में आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ अपनी लाइफ के बारे में। मैं 1988 जनवरी में मैं पैदा हुआ। मैं अपने पेरेंट्स की सबसे बड़ी औलाद हूँ और मैंने जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त हम घर की तरफ जाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और जितनी ट्रैफिक है ये मेरे दोस्तों आप सब देख सकते हैं, मेरे तमाम फॉलोअर्स मैं जा रहा हूँ घर।